Okay, today we'll start with the chapter in the kingdom of fools. So, in the kingdom of fools, both the kings and the ministers were idiots. So, this is the story of one of the kingdom where everybody was fool only. Everybody was fool. Kings and the ministers and even the all the people were fool. They did not want to run things other kings. वो दूसरे kings के जैसे अपना राज्य नहीं चलाना चाहते थे. So they decided to change the night into day and day into night. So उन्होंने डिसाइड किया दैट वो रात को दिन के जैसे और दिन को रात के जैसे निकालेंगे एंड दे विल स्पेंड द टाइम लाइक दैट. जैसे रात को हम सोते हैं तो दे विल वर्क इन नाइट और दिन में हम काम करते हैं तो दे विल स्लीप एट डे टाइम. Till their feeds and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. Anyway, who disobeyed would be punished with the death. और जो भी इस नियम को नहीं मानेगा राजा उसको क्या सजा देगा? To be hanged till death. The people did as they were told for fear of death. और मौत के डर से, डेथ के डर से, मरने के डर से everybody was spending the time like that. The king and the ministers were delighted at the success of their project. One day, a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन एक गुरु और उनका जो फॉलोवर था, डिसिपल का मतलब होता है फॉलोवर, वो सिटी में आते हैं. इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट. वो दिन में वहां पहुंचते हैं बट देयर वॉज नो वन अबव. लेकिन एज वहां का जो नियम था उस हिसाब से वहां पर कोई भी प्रेजेंट नहीं था. एवरीबडी वॉज अस्लीप. हर कोई सो रहा था, है ना. By the daytime, the twos, even the cattle and cattle had been taught to sleep by day. यहाँ तक कि जो कैटल्स थे उनको भी ऐसे सिखा दिया गया था कि वो दिन में सोए और रात को काम करें. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. और वो लोग इस शहर में घूमते गए और ऑल ऑफ सडन उन्हें क्या दिखा, जैसे ही शाम हो जाती है तो क्या होता है कि शाम होते नहीं होते बाजार जो है वहां पे रौनक आ जाती है, बाजार सजने लग जाते हैं, बाजार में लोग वगैरह आ जाते हैं. दैट मीन्स मार्केट स्टार्ट हो जाता है. द टू मैन वर हंग्री. अब जो वो जो गुरु और उसका जो डिसिपल था, उनका जो फॉलोवर था, उन लोगों को लग रही थी बहुत जोरों से भूख. They were feeling hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. अब वो एक शॉप में गए जहां पर ग्रोसरी शॉप यानी किराना स्टोर. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single doo-doo. अब उन्होंने देखा कि हर कुछ, चाहे आप कुछ भी लो, एक चाहे सस्ती लो चाहे महंगी लो, वहां पर एक सिंगल डूडू इज अ करेंसी. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, चाहे वो बनाना ले चाहे राइस ले, सबके एक ही दाम है. It cost a doo-doo. The guru and his disciple were delighted. उन्हें बड़ी खुशी हुई कि चलो कुछ महंगा ले लो तब भी सस्ता, तब भी वही रेट है, और सस्ता लो तब भी वही रेट है. So definitely everybody wants to go for the good one only. They had never heard of anything like this. उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं सुना था कि हर एक चीज के जो दाम है, जो प्राइस है, दैट इज सेम ओनली. They could buy all the food they wanted for a rupee. और ₹1 में वो जो भी खरीदना चाहते थे वो खरीद सकते थे. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it would not be good idea for them to stay there. जब उन्होंने खाना वाना सब खा लिया तो गुरु को ऐसा लगा कि ये जो शहर है, ये जो सिटी है, ये जो टाउन है, that is a kingdom of fools. ये fools, मूर्खों की जगह है, and it is better not to stay there. This is no place for us. Let's go, he said to his disciple. But the disciple did not want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good cheap food. Now उसने बोला, जैसे ही गुरुजी ने बोला कि ये जो किंगडम है ये फूल्स का है, इट इज बेटर नॉट टू स्टे ओवर देयर, लेकिन डिसिबल जो था वो राजी नहीं था. रीजन भी क्योंकि उसने सोचा कि मैं यहाँ पे जितना मर्जी खाऊंगा और मुझे पैसे बहुत कम देने पड़ेंगे. So he was very happy. He doesn't want to go over there. They are all fools. They won't last very long and you cannot tell what they will do to you next. Now गुरु को तो समझ में आ गया था. उन्होंने बोला कि जो फूल्स की सिटी है यहाँ पे ज्यादा लंबे समय तक हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं.
ये जो है ये बहुत ज्यादा हमारे लिए डेंजरस हो जाएगा। रीजन बीइंग, क्यों डेंजरस हो जाएगा? क्योंकि हमें नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम ये लोग क्या कर लेंगे, या तुम्हारे साथ ये क्या करेंगे, तुम्हें भी नहीं पता। But Disciple would not listen to the Guru's wisdom. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, do you wanted to stay? उसने बोला हाँ मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो गुरु ने बोला ठीक है, I am going and left. The disciple stayed on, ate his ate his fat like street side scared bull, or sorry, ate his fill every day, banana and ghee and rice, wheat, and grew fat like a street side scared bull. अब क्या हुआ कि क्योंकि वो जो गुरुजी थे वो तो चले गए, और उसके बाद क्या हुआ, जो डिसिपल था वो हर वक्त खाना खाने लग गया बिल्कुल, क्योंकि इतना चीप खाना था, इतना सस्ता था कि वो बनाना, घी, राइस, वीट इतना खाता था, इतना खाता था। और क्योंकि ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं थी तो मेहनत भी बहुत कम करना पड़ता था। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि वो जो रोड साइड बुल की तरह वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया। समझ में आया इतना? ओके। ओके, बट द डिसिप्लिन वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, और वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया। वन ब्राइट डे, एक दिन क्या हुआ, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। एक दिन क्या होता है, एक जो रिच एक मर्चेंट था उसके घर के अंदर कौन घुस जाता है, थीफ घुस जाता है। He had made a hole in the wall and sneaked in. Sneaked in यानी अंदर घुसना, वो एक होल करता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है। And as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. Now what happened कि जैसे ही, क्योंकि वो दीवार जो थी वो थोड़ी सी पुरानी थी, और वो जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश करता है तो क्या होता है कि वो जो वॉल थी वो टूट जाती है, और टूटने के बाद उसी के ऊपर, सर के ऊपर गिर जाने की वजह से वो मर जाता है। वो जो चोर था वो हाथों हाथ वहीं पर हैंड टू हैंड मर जाता है। His brother ran to the king and complained. अब उसका जो भाई था वो कंप्लेन करने जाता है राजा के पास। Then his brother, your highness, when my brothers was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. अब वो क्या कहता है कि जब मेरा भाई जो था वो परसुइंग हिज एंशियंट ट्रेड, अपना पुराना काम, एंशियंट ट्रेड यानी कि जो पुराने समय से करता आ रहा था, यानी कि चोरी करने जा रहा था, या कोई भी एंशियंट ट्रेड, एंशियंट ट्रेड का मतलब चोरी नहीं, क्योंकि वो चोर था, चोर का काम पुराना भी चोरी था, चोरी करना ही था। तो दैट्स व्हाई ही इज प्लेइंग विद द वर्ड्स, वो वर्ड से खेलता है। वो कहता है कि जब मेरा भाई अपना पुराना काम करने जा रहा था, उसके सर के ऊपर वॉल जो है वो गिर गई और उसकी वजह से वो मर गया। द मर्चेंट इज टू ब्लेम, और जो मर्चेंट है उसके लिए वो जिम्मेदार है। ही पनिश द wrong order and compensate the family to his injustice. वो कहता है कि अब ये जो है ये गिल्ट है, ये गिल्टी है, कौन जो मर्चेंट है वो गिल्टी है, एंड दैट इज व्हाई ही हैज टू कंपनसेट द फैमिली। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड द वन समन द ओनर ऑफ द हाउस। किंग कहता है ठीक है तुमको न्याय जरूर मिलेगा, एंड ही सम अप यानी कॉल अप, कॉल किया किसको, उस मर्चेंट को। When the merchant arrived, जब मर्चेंट जो है वो आता है, the king questioned him, what is your name? किंग ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? Such and such, your highness. उसने बोला सच और सच। Were you at home when the dead man burst out your house? उसने बोला कि पूछा, राजा ने पूछा कि when you were in the house when this thing happened? Yes my lord, he broke in the wall and was weak. और उसने कहा कि हाँ मैं घर पे ही था, और उसने जो दीवार जो उसने तोड़ी थी वो क्योंकि वो वीक थी, दीवार जो टूटी वो बहुत ज्यादा वीक थी, दैट इज द रीजन व्हाई इट फेल आउट। It fell on him. The accused pleaded guilty. Now your wall killed the man's brother. और उसने कहा कि इसका मतलब तुम जो है वो तुम्हारे ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं
कि वो प्रूफ हो गए कि तुम्हारी वॉल जो थी वो वीक थी और तुम्हारी वजह से इसका भाई मर चुका है. यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू. उसने बोला तुम्हें पनिश करना पड़ेगा अब, क्योंकि तुमने एक मर्डर किया है. लॉर्ड, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल. उसने बोला कि मैंने तो वॉल बनाया नहीं है. इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल. ही डिड नॉट बिल्ट इट, he did not build it right. You should punish him. अब उसने बोला, मर्चेंट ने बोला, अब वॉल मैंने तो बनाया नहीं है, वेल जिसने बनाया है आप उसको पनिश कीजिए. उसने सही तरीके से वॉल जो है उसका अच्छे से बिल्डअप नहीं किया है. हु इज दैट? राजा ने पूछा वो कौन है? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम. ये जो वॉल है वो किसके टाइम पे बनाई गई है? मेरे पापा के टाइम पे. आई नो अ मैन, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, ही इज लिव्स नियर बाय. उसने बोला वो बहुत पूरा बूढ़ा हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, वो मेरे घर के पास में ही रहता है. द किंग सेंट आउट द मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ट द वॉल. अब वो उस मैसॉन को, मैसॉन यानी वो जो मजदूर था, ब्रिक लेयर जो था, उसको वो बुला के लाते हैं राजा के सिपाही. दे बॉट हिम टाइड एंड हैंड एंड फुट. अब वो बेचारे उस बुढ़े आदमी को बांध के लेके आते हैं, उसके हाथ पैर बांध के. You there, did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did. अब उसने पूछा राजा ने, क्या तुमने इसके फादर के टाइम पे इसका घर बनाया था? So जो मैसॉन था, ब्रिक लेयर जो था, he said yes, I did. What kind of a wall is that you built? तुमने किस तरीके से बिल्ड करा है घर को? It has fallen on a poor man and killed him. ये बेचारे एक गरीब आदमी के ऊपर गिरा और उसकी वजह से वो आदमी मर गया. यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसको मारा है. वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ. अब उसने बोला कि हमें तो तुम्हें मारना, तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी. एंड यू विल ऑल्सो गेट द सेम पनिशमेंट, यू विल ऑल्सो गेट द डेथ पनिशमेंट. माई लॉर्ड, सॉरी, बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन यानी टू इम्प्लीमेंट. इम्प्लीमेंट यानी क्या? इम्प्लीमेंट कि उसको मौत की सजा दे. उससे पहले क्या हुआ? द पुअर ब्रिक लेयर प्लीडेड. द जो पुअर ब्रिक लेयर जो था, मैसन जो था, मजदूर जो था, उसने प्लीज किया, उसने अर्ज किया, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स. इट इज ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड. मैं मानता हूँ कि ये जो वॉल है वो मैंने बनाया है और उसका बिल्डिंग अच्छा नहीं बना है, कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं हुआ है. बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट. और वो किस लिए हुआ? क्योंकि मेरा दिमाग उस वक्त उस काम में नहीं था. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her ankles jingling, and I could not keep my eyes or my mind on the wall I was building. उसने कहा मुझे याद है कि एक जो डांसर थी वो हमेशा एंकलेट, यहाँ पर एंकलेट का मतलब है पायल पहन के, पायल पहन के वो इस गली में आ जाया करती थी. और उसका जो ट्रिंकलिंग साउंड था, उसकी जो घुंघरुओं की आवाज थी, उसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था और उसकी वजह से मैं मेरे काम पे ध्यान नहीं दे पाया. यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स. अब उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा, ब्रिकलेयर ने, कि मुझे पता है कि वो डांसिंग गर्ल जो है वो कहाँ रहती है. You are right. The case depends. We must now look into it. It is not easy to judge such a complicated cases. Let's get the dancer wherever she is. अब राजा ने वापस क्या आदेश दिया कि ठीक है, तुम सही कहते हो, और हमें किसको हमें पनिश करना चाहिए? इस डांसर को, जिसकी वजह से जो मैसॉन था, जो ब्रिकलेयर था, वो he get distracted. The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. Now, of course, this is the matter of the merchant's father time, and this dancer is also getting very old now. Now she is also getting very old lady, so she came. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? Now the king is asking to the dancer whether she was walking on the street when the mason was doing his job. Yes, my lord, I remember it very well. So you did walk up and down with your ankles jingling. You were young and you distracted him, so he built a bad wall. Now the king is saying that because you were walking here and there with the jingling voice of your anklet, so because of this only the mason was not able to continue or to do his part of job perfectly, and that is why he made a bad wall.
इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, और इसकी वजह से क्या हुआ है, एक आदमी जो कि बहुत पुअर है, गरीब है, ही डाइड. You have killed an innocent man. You have to be punished. Now the king is saying that because of you only the whole this mishap happened, so you will be punished. She thought for a minute and said, "My lord, wait. I know now why I was walking up and down that street." Now the old lady is saying that just now only she remember कि वो बार बार move out क्यों कर रही थी. I had given my some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. Now he is saying कि मैंने एक गोल्ड स्मिथ को मेरी ज्वेलरी दी थी, एक सोना दिया था, थोड़ा सा सोना दिया था टू मेक अ ज्वेलरी. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it to now and he would give it to then, and so on all the day. अब वो कह रही है कि मैंने उसको ज्वेलरी बनाने के लिए दी, क्योंकि लेकिन जो गोल्ड स्मिथ था, जो सुनार था, ही वॉज डैम लेजी. वो इतना लेजी था कि वो मुझे कभी कहता था अब आओ, कभी कहता था तब आओ, फिर जाती थी तब, फिर वो वापस लिंगर ऑन करता था, और इसकी वजह से मुझे बार बार उस स्ट्रीट में आना जाना पड़ता था. ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू दिस हाउस डजन टाइम्स. वो मुझे उसकी वजह से मुझे उसके घर में बार बार आना पड़ता था. दैट वॉज वेन हिज ब्रिक लेयर सॉ मी. इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स अ डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट. अब उसने कहा ये मेरी गलती नहीं है, ये किसकी गलती है, ये उस गोल्ड स्मिथ की गलती है जो मेरा काम प्रॉपरली नहीं कर रहा था. Poor thing, she is absolutely right. Now the king is saying, huh, this is correct. She will not walk up, she will not move out again and again if the goldsmith gave the jewelry at a one slot. अगर वो एक ही बार में दे देता तो डेफिनेटली ये बेचारी बार बार मूव आउट नहीं करती. So the main culprit is the goldsmith. So poor thing, she is absolutely right, thought the king, weighing the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. अब वो कहता है goldsmith को पकड़ के लाओ. The king baffled search for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. Now, अब जब वो लोग उस गोल्डस्मिथ को पकड़ के लाते हैं, अब जब वो गोल्डस्मिथ को पकड़ के लाते हैं तो वो उसकी पास अपनी खुद की एक स्टोरी थी. वो कहता है माय लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ. इट इज ट्रू कि मैं एक पुराना और मैं एक बहुत ही गरीब गोल्डस्मिथ हूँ. आई मेड द डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर. और मैंने ही इस डांसर को मेरे दरवाजे पर मेरे घर पे बहुत बार बुलाया जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट कंप्लीटिंग द वर्क. I gave her excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. उसने कहा कि मैं इसका काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि एक रिच मर्चेंट ने मुझे कुछ ऑर्डर दिया था बनाने के लिए, and I have to finish his work first. They had a wedding coming and they would not wait. उनके घर में शादी थी and they cannot wait. You know how impatient the rich men are. अब वो कहता है आपको तो पता ही है ये जो रिच मर्चेंट्स होते हैं, रिच मैन होते हैं, ये बहुत ही इम्पेशेंट, इनके अंदर पेशेंस नहीं होता. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? Now the king is asking, who is that man who make you bound not to finish your work properly or on time? Then made her walk up and down, which distracted the bricklayer, which made a messy wall, and which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? The goldsmith named the merchant, and he was not other than the original owner of the house whose wall had fallen. Now उसने जैसे ही कौन था वो बिग मर्चेंट जिसको सबसे पहले राजा ने पकड़ा था, वही रिच मर्चेंट जिसका जो वॉल था वो टूटा और उसकी वजह से उस चोर की मौत हो गई. Now justice had come full circle through the thought the king. किंग ने सोचा जो जस्टिस है, मैंने पहले ही इसको पकड़ा था और ये सही आदमी था. बैक टू द मर्चेंट. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. It was not me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent. अब वो जो मर्चेंट है वो कहता है अरे ये मैं नहीं था, वो तो मेरे फादर थे और मेरे फादर तो अब बचे ही नहीं है. He also passed away. But the king consulted his minister and ruled decisively. It is true, your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. अब वो कहता है राजा तो वैसे ही मूर्ख था,
उसने कहा लेकिन ये ठीक है, आप सही कहते हो कि आपके फादर की वजह से ये सारा काम हुआ, बट नाउ ही इज डेड, नाउ ही इज नो मोर, तो किसी ना किसी को तो मरना है। सो यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, और क्योंकि वो तुम्हारे फादर थे तो नाउ यू आर गिल्टी। Even when I first set eyes on you, that you were at the root of the horrible crime, you must die. Now राजा अपने आप की तारीफ कहता है और कहता है कि मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये तुम ही हो सकते हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। And he ordered a new stake to be made ready to the execution. Now उसने कहा एक नया स्टेक का मतलब होता है फांसी का फंदा, उसने कहा एक नया फांसी का फंदा बनाया जाए ताकि ये एग्जीक्यूट किया जाए पनिशमेंट को। As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred minister that the rich merchant was somehow too thin to properly execute on the stake. अब क्या होता है कि वो रिच मर्चेंट के गले से थोड़ा सा मोटा हो गया था, रिच मर्चेंट का गला थोड़ा सा पतला था और स्टेक जो था, फांसी का जो फंदा था, वो थोड़ा मोटा था। He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. अब क्या हुआ, क्योंकि फांसी का फंदा जो था वो थोड़ा सा मोटा बन गया था और किंग का जो गला था वो कैसा था, थोड़ा सा पतला था, तो he was not fitted in that. What shall we do now? अब हम क्या करें? When suddenly it struck him that they needed to do what was to find a man fat enough to fit the stake. अब वो कहते हैं कि हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो इस स्टेक में फिट हो जाए, जो इस फांसी के फंदे में फिट हो जाए और जिसका की गला भी थोड़ा सा मोटा हो। The servant were immediately sent all over the town looking for a man who would fit into the stake. अब सारे के सारे जितने भी सैनिक थे वो they started searching out कि कहीं ना कहीं से वो किसी एक ऐसे इंसान को पकड़े जिसका की गला जो है, जिसकी की गर्दन जो है वो उस फांसी के फंदे में स्टेक में फिट हो जाए। So himself on the bananas. अब वो लोग कहाँ पर पहुंचे? Who would the servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit into the stake, and their eyes fell on the disciple. अब अचानक से उनकी आईज कहाँ पर गिरी? किसको देखा उन्होंने? उस डिसिपल को, फॉलोवर को, गुरु के। Who had fattened himself for the months of banana, rice, wheat and ghee, जिसने अपने आप को बनाना, राइस, घी और ये सब चीजों से बहुत ज्यादा मोटा कर लिया था। नाउ अब वो लोग उसको पकड़ के लेके आते हैं एंड देन दे अगेन स्टार्टेड, यू हैव व्हाट आई हैव डन, आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी, ही क्राइड। उसने बोला मैं तो साधु पुरुष हूँ, साधु हूँ, मैंने क्या किया है? There, that may be true, but it's royal decree that we should find a fat enough to be the stake, fitted to the stake. अब वो जो उसके सिपाही थे उन्होंने कहा कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमें रॉयल यानी राजा का आदेश है कि हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो इस स्टेक में, जो इस फांसी के फंदे में फिट हो जाए। और उन्होंने उसको वो उसको राजा के पास लेके आते हैं। He remembered his wise guru's word, this is the city of fools, you don't know what they will do to next. अब उसको अपने गुरु की बात याद आती है, उसके गुरु ने बोला था कि ये सिटी जो है वो फूल्स की है एंड यू नेवर नो कि कब तुम्हारे साथ क्या हो जाए। While he was waiting for the death, he prayed his guru in his heart. जब वो अपने डेथ के लिए वेट ही कर रहा था तब वो अपने गुरु को याद कर रहा था। Asking him to hear his cry whenever he was, और उन्होंने बोला था कि जब भी तुम मुझे दिल से याद करोगे मैं वहां आ जाऊंगा। He could see far and he could see the future as he could see the present and the past.
He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrap through the love of food. अब क्या हुआ, क्योंकि वो जो डिसिपल था वो अपने मन से अपने गुरु को याद कर रहा था, तो गुरु जो था वो बहुत पहुंची हुई चीज थी, इसलिए वो, क्योंकि वो अपना भविष्य या भविष्य भी देख सकता था, पास देख सकता था. सो व्हाट हैपेंड, ही केम टू नो, उसको अचानक से इंट्यूशन हुआ कि उसका जो डिसिपल है वो प्रॉब्लम्स में है, तो वो इमीडिएटली अपने डिसिपल के पास आ गया. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him. जैसे ही वो वहां पर पहुंचा तो सबसे पहले उसने अपने डिसिपल को डांटा और उसके कानों में कुछ जाके कहा. उसके बाद वो किंग के पास गया और कहा, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, हु इज ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल. उसने कहा, हे बुद्धिमान राजा, बड़ा कौन है, ज्यादा बड़ा कौन है, गुरु या डिसिपल? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट. why do you ask? अब राजा ने पूछा, ऑफ कोर्स गुरु सबसे ज्यादा बड़ा होता है, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू द डेथ आफ्टर मी. उसने कहा कि तो फिर आप मुझे सबसे पहले फांसी के फंदे पर चढ़ाइए और मेरे डिसिपल को बाद में. When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to the death first, not him. अब जैसे डिसिपल ने ये चीज सुनी तो डिसिपल ने बोला, नहीं नहीं, मैं पहले आया हूँ तो पहले फांसी के फंदे पर मैं ही चढ़ूंगा. द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गेट इनटू द फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट. अब गुरु और डिसिपल दोनों लड़ रहे हैं कि मैं पहले चढ़ूं कि मैं पहले फांसी के फंदे पे चढ़ूं. द किंग वॉज पजल्ड. अब ये सारी चीजें देख के किंग जो था वो पजल्ड हो गया बाय हिज बिहेवियर. ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वांट टू डाई, तुम मरना क्यों चाहते हो? वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक. उसने कहा, मैं तो इसीलिए चाहता था, इसको इसीलिए पकड़ के लाया क्योंकि हमें तो एक मोटा सा आदमी चाहिए ताकि वो हमारे स्टेक में फिट हो जाए. यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू द डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु. अब गुरु ने बोला, प्लीज आप मुझसे ये सब कुछ ना पूछे, बल्कि आप मुझे जल्द से जल्द स्टेक पर चढ़ा दें, मतलब फांसी के फंदे पर मुझे चढ़ाए. विल यू प्रॉमिस टू मी टू डेथ इफ आई टेल यू? फिर उसने बोला कि अच्छा, अगर मैं आपको सच्चाई बता दूं तो क्या आप प्रॉमिस करते हैं कि आप मुझे सबसे पहले फांसी के फंदे पर चढ़ाएंगे? आस्क्ड द गुरु. द किंग गेव हिम हिज सोलेमन वर्ड्स. और किंग ने बोला, हाँ ठीक है. देन गुरु ने बोला, टुक हिम टू अ साइड, वो अपने उसको साइड में लेके गया के और बोलता है, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर टू हिम, डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ? अब गुरु ने बोला, तुम्हें पता है हम मरना क्यों चाहते हैं? द टू ऑफ अस, वी हैव बीन ऑल we have been all over the world but we have never found a city like this or a king like you. उसने बोला कि मैं और मेरे डिसिपल ने पूरी दुनिया घूमी है, लेकिन हमें आप जैसा किंगडम और आप जैसा किंग अभी तक नहीं मिला. द स्टेक इज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस. ये जो फांसी का फंदा है ये गॉड ऑफ जस्टिस का फंदा है. इट्स न्यू, ये नया है. इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट. इसके अंदर कोई भी क्रिमिनल को फांसी नहीं दी गई है. Whoever dies on the first will be the reborn as a king of this country. उसने बोला, जो भी मरेगा वो कमिंग अपने अगले जन्म में इसी कंट्री का राजा बनेगा, और जो नेक्स्ट होगा वो कौन होगा? उसका मिनिस्टर. वी आर सिक ऑफ आवर एस्थेटिक लाइफ. अब वो कहता है, हम ये साधु वाले लाइफ से बोर हो चुके हैं. इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्फ एज अ किंग एंड अ मिनिस्टर फॉर अ व्हाइल. अब वो कहते हैं, कुछ एक टाइम हमारे पास भी ऐसा आएगा अगर हम मर जाते हैं कि हम राजा और मिनिस्टर के जैसे अपना जीवन निकालें. नाउ कीप योर वर्ड्स माय लॉर्ड एंड पुट अस दैट मी फर्स्ट रिमेंबर. अब उसने बोला कि अब मैंने आपको ये जो राज की बात है वो बता दी है, तो अब आप मुझे सबसे पहले उसमें चढ़ाएंगे फांसी के फंदे पर और उसके बाद मेरे डिसिपल को. द किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू द डीप थॉट. अब जो किंग था वो बहुत गहरी सोच में चला जाता है. एंड he did not want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. अब वो कह रहा है कि वो किसी भी कीमत पे अगले जन्म में ये राजा की गद्दी को छोड़ना नहीं चाहता है. he needed time.
he wants time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked to the secret with his minister. Now what happened? He postponed the execution one of the disciple, and he had words with the minister. It's not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on the stake ourselves, and we will be reborn as a king and the minister again. एंड नाउ द मिनिस्टर एंड द किंग डिसाइडेड कि हम किसी और को तो अपना देश दे नहीं सकते हैं, तो इट इज बेटर कि अगर हम किसी भी तरह से अगले जन्म में भी राजा और मिनिस्टर बन जाए तो ये जो राज्य है ये हमारे पास ही आ जाएगा. होली मैन डू नॉट टेल लाइज. अब वो कहता है साधु महात्मा झूठ नहीं बोलते हैं. ही सेड एंड द मिनिस्टर अग्रीड. सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनरिस्ट, जो एग्जीक्यूशनर्स थे, जो फांसी का फंदा देने वाले थे, मिनिस्टर ने उनको कहा वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट. उसने कहा कि हम क्रिमिनल्स को आज रात तुम्हारे पास भेजेंगे. व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू द डेथ फर्स्ट. जैसे ही वो पहला आदमी आए तो तुम सबसे पहले उसका डेथ कर देना, उसको फांसी के फंदे पर लटका देना. और डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और दूसरे आदमी के साथ भी सेम चीज करना. Those are my orders, don't make any mistake. अब वो एग्जीक्यूशनरिस्ट को कहते हैं कि कोई भी गलती मत करना. That night the king and the minister went secretly to the prison, released the guru and disciple, disguised themselves as the two, and arranged beforehand with the loyal servants, were taken to the stake and promptly executed. उस रात को वो जो राजा और मिनिस्टर जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुरु और डिसिपल को तो आजाद कर दिया और खुद डिस्गाइज हो गए. डिस्गाइज यानी भेष बदलना, अपना भेष बदल के, और फिर क्या हुआ, वो दोनों चले गए. और सबसे पहले राजा जो था वो गया, उसको फांसी दे दी गई. उसके बाद उसका मिनिस्टर गया, उसको भी फांसी दे दी गई. When the bodies were taken down to the throne to the crows and the vultures, the people panicked. और जैसे ही उनकी बॉडी को, उनकी डेड बॉडी को वल्चर्स और क्रो के सामने फेंका गया, तो लोगों ने जैसे ही उनका चेहरा देखा, दे वर पैनिक, वो परेशान हो गए. They saw before him the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. All night they mourned and discussed the future of the kingdom. अब वो वहां पर तो सारे के सारे फूल्स थे, सारी रात वो डिस्कस करते रहे कि अब इसका क्या होगा, अब क्या होगा हमारे किंगडम का. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught him by them, and they were preparing to leave the town unnoted. और किसी के दिमाग में अचानक से उस गुरु और उसके डिसिपल का ध्यान आ गया, जो गुरु और डिसिपल जो थे वो बिना किसी को बताए उस शहर से निकलने वाले थे. अब वहां पर लोगों ने पहुंचे और लोगों ने कहा वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर. सेड टू समवन, उन्होंने कहा कि हमें किंग और मिनिस्टर दोनों की जरूरत है. Others agreed. They begged the guru and the disciple to their king and the minister. It did not take many arguments to pursue the disciple, but it took longer pursuit to the guru. हालांकि डिसिपल जो था वो तो फटाफट राजी हो गया उधर रहने के लिए, गुरु को थोड़ा टाइम लगा, बट इवन देन they finally agreed to rule over the king of the foolish king and the silly minister on the condition they could change all the old laws. और वो एक ही कंडीशन पर गुरु जो डिसिपल जो थे वो एक ही कंडीशन पर माने कि वो मिनिस्टर और राजा बनेंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ कि वो सारे पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे वो ओल्ड जो थे फूल किंग के और मिनिस्टर के वो सब चेंज करेंगे. From then on, और उस दिन से night would be he gained as a night day and the day was be day. और उस दिन से night में night होता था, day होता था. night में लोग सोते थे, day में काम करते थे, और सब कुछ का अलग प्राइस होता था. नथिंग इज गेटिंग ओनली अ डूडू. एक डूडू या ₹1 से कुछ भी नहीं मिलता था, उसके मतलब चीज के हिसाब से उसका प्राइस टैग हुआ. नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. ओके.